It has had both a critical and commercial success, a film which has been unequivocally loved by everyone. As it now begins its Oscars journey, we have Lapata Ladies dialogue writer Divya Nidhi Sharma joining us live. Mr. Sharma, congratulations. I know the news was broken to you by our common friend while you are in the middle of a shoot in Lucknow. So let me ask you the obvious first question. When you were writing the dialogues, did you expect it to have this kind of dream run? First of all, a correction. I co-wrote the dialogues along with Sneha Desai. And yes, while we were writing the film, we knew we had something special, but no one expected this sort of reaction, this sort of reception by the public that we got. And one of the most, memorable, or should I say strong characters in this film is Manju Mai, who uses her freedom of expression, I would say, wisely in this film. And she actually stays with us because of the dialogues. So tell us about Manju Mai and the choice of dialogues that you have for her. See, Manju Mai is one of all of our favorites. Mine, Biplab Goswami, the original story writer, Sneha Desai, screenplay and dialogue writer. We just loved Manju Mai. It also happens to be Kiranji's favorite character. In the, she's also sort of author's mouthpiece. The gyan that she spouts in her local lingo. It's just amazing. And the way Chaya Kadam has portrayed the character, she has taken it to another level altogether. और दिव्या, जब ये मंजू माई का कैरेक्टर आप लोग उसके जो डायलॉग्स लिख रहे थे ऑफ कोर्स अपनी को राइटर के साथ, तो उसमें इतना हाई नोट फेमिनिज्म है और बहुत ही कैजुअल तरीके से हर चीज बोला गया है, वो कैसे आप लोगों ने इंश्योर किया कि सरकाज़म भी हो लेकिन एट द सेम टाइम मंजू माई एक वो कहते हैं ना कि जो बाल उन्होंने पकाए हैं वो धूप में नहीं पकाए हैं, वो विजडम की निशानी है। बाल पकाने के बारे में तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मंजू बाई जो है, मंजू बाई इज एक्चुअली, आप देखें फिल्म में सबसे फेमिनिस्ट कैरेक्टर, एक महिला जो अकेली रहती है, जो अपने पति अपने बच्चे को निकाह अपने बेटे से परेशान होकर उनको निकाल चुकी है। शी लिव्स अलोन इस दुनिया में। तो ओवर द इयर्स जो एक्सपीरियंस मंजू माई ने गैदर किए हैं, वो मंजू माई फूल को देती रहती हैं। उनकी जबान बड़ी मजेदार है। हम कभी ये नहीं चाहते थे कि ऐसा लगे कि कोई भी कैरेक्टर भाषण दे रहा हो, और मंजू माई के साथ ये इट वाज अ वेरी थिन लाइन, शी कुड इजीली हैव स्लिप्ड इनटू सरमनाइजर, लेकिन मंजू माई थैंकफुली हमारी सबकी कोशिशों से इतना खूबसूरत किरदार बना, जिसने इतनी मजेदार तरीके से बातें कही कि इट वाज जस्ट अ प्लेजर टू राइट इट एंड जस्ट अ प्लेजर टू वॉच इट ऑन स्क्रीन। एंड बिसाइड्स मंजू माई, in one way or the other, you are seeing that women, even Deepak's mother, comes across as this very strong advocate of women's empowerment. So they may be wearing pallus, but then when it comes to women empowerment, all of them actually have internalized it. Yes, actually film makes a very interesting point, very important point, कि empowered women होने के लिए खास तरह के लिबास की या खास तरह के कपड़ों की जरूरत नहीं होती। आप जो स्टीरियोटाइप देखते हैं कि एक गांव की महिला है, वो शायद हम उसको एक एम्पावर्ड महिला के साथ सीधे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने मन में, लेकिन इस फिल्म के सारे किरदार इस मिथक को तोड़ते हैं। सारी लड़कियां, फूल हो, मंजू माई हो, दीपक की मम्मी हो, कोई भी कैरेक्टर हो, जया हो, वो सारी की सारी एकदम भारतीय ग्रामीण परिवेश से निकली हुई महिलाएं हैं, एंड येट दे आर मोर एम्पावर्ड देन परहैप्स मोस्ट ऑफ देयर सिटी काउंटरपार्ट्स। Divya, did it actually, you were able to portray them and make them so realistic because of the background the writers come from? Does it really help that अगर एक background होता है तो उनको जो भाषा होती है उसकी भी बहुत अच्छी समझ होती है? Absolutely, it does help. Like कई बार लोग पूछते हैं कि मनोहर का कैरेक्टर कैसे आया, तो उसके लिए मैंने सारी उम्र रिसर्च की है। मेरे फादर यूपी पुलिस में काम करते थे, तो I have been preparing for this writing Manohar for all my life. I've seen real life Manohars up close and personal. और यूपी पुलिस के एक आपने कॉप बना दिया रवि किशन जी को भी, जिनमें भी एम्पैथी दिख रही है। Yes,
भाई पुलिस की नौकरी करने के बाद भी वो इंसान है, तो उनमें एम्पैथी दिखती है। वो आदमी करप्ट भी है, लेकिन वो आखिर में पलटी भी मारता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक कैरेक्टर्स इन द फिल्म एंड रवि जी हैज पोर्ट्रेड इट सो ब्यूटीफुली. And this, Oscar nomination, Yes. particularly that it is going to be India's cinema to the world, that is what it will be showcasing what India is in terms of complex social issues. Do you think it will be relatable, particularly the message of sisterhood which comes in these dialogues? Oh, absolutely. And it has a global appeal just because it is very local. The way the characters are, they're so real, so authentic, so Indian, right from their outlook to the way they look, their clothes, their characters, their outlooks of life. I guess that is why it has appealed to a wider audience all across the globe over a period of time. और मुझे लगता है कि उसी वजह से ऑस्कर्स में भी देखते हैं, भगवान ने चाहा तो बहुत आगे तक जाएगी. बस एक आखिरी सवाल आपसे, अगर तुम ना होती तो हम नहीं मिलते, that is a dialogue which stays with most of us. Yes. As we have seen, because it's about self discovery as well. But tell us about one aspect of this film which was about constant reinvention in terms of कि अगर आप लोकेशन पर थे तो लोकेशन के माहौल की वजह से आप लोगों ने डायलॉग्स को रीथिंक किया. सी इसके डायलॉग्स ओवरऑल जब फिल्म एक अरसे तक लिखी जाती रही, इट वाज राइटिंग लापता लेडीज वाज अ रिले रेस कि विप्लव ने बैटन पास किया स्नेहा ने पास किया मुझे, तो हर लेवल पर डायलॉग में इजाफा होता रहा, डायलॉग तराशे जाते रहे और बहुत आखिर तक जब तक हम बिल्कुल पहुंच नहीं गए शूट करने तक, तब तक बहुत कुछ होता रहा. लेकिन शूट पर जैसे लिखी हुई थी ऑन पेपर द फिल्म द वे इट वाज exactly the way Kiran ji has translated it on screen. और ये कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, कमर्शियल सक्सेस भी हो रहा है, इसका क्रिटिकल सक्सेस भी है. ऑलमोस्ट ऑल टाइम क्लासिक का ये रंग और रूप ले रही है. जब आप लिख रहे थे, पूरी टीम लिख रही थी, तो क्या लग रहा था कि इतना बड़ा इस रफ्तार से आगे बढ़ेगी? We had absolutely no idea. आई गेस ये सोच के कोई भी फिल्म लिखी ही नहीं जा सकती है, बनाई नहीं जा सकती कि हम एक क्लासिक बना रहे हैं. मतलब इट्स बियॉन्ड आवर कैपेसिटी. वी जस्ट ट्राई टू मेक अ फिल्म टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज, और उसके बाद फिल्म की किस्मत है और जनता उसको जहां तक ले जाए, जितना प्यार दे. एक मैसेज देना चाहेंगे आज दिव्या, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है. जी, मैं तो ये मैसेज देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने लापता लेडीज अभी तक नहीं देखी है, तो प्लीज आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी जाइए लॉग इन कीजिए, लापता लेडीज देखिए, अपने दोस्तों से कहिए, फैमिली से कहिए, प्लीज वॉच द फिल्म. बाकी जो मैसेज देने लायक है उस फिल्म में. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. डायलॉग्स राइटर देयर explaining to us what it means for the team and also for the audience.